So we're in part 9 of the study of Romans, and towards the end of the book of Romans that we are studying. हम नौवा भाग, हमारा स्टडी का नौवा भाग तक पहुंच गए हैं और हम रोमियो का जो पुस्तक का अंत में आ पहुंचे हैं. I really thank God that God has given this opportunity to study the scriptures. मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर दिया परमेश्वर का वचन सीखने को. So each and every time when you're reading some things, really understanding, reading many articles around it, and God is revealing so many things of His wonderful things about Himself in the scriptures. जब मैं ये वचनों को जब पढ़ रहा था और उसके बारे में आर्टिकल्स, उसके बारे में पुस्तकों में जो लिखा है, जो परमेश्वर के दासों में जो अलग चीजें लिखा है, उसको जब मैं पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर के बारे में और बड़ी और अच्छे बातें, परमेश्वर का महत्वपूर्ण बातों को मैं देख पा रहा था. So if probably I did not get this opportunity, I would probably have missed out a lot of things. Probably I would have known some things very late that could have happened. अगर मुझे ये अवसर नहीं मिलता ये रोमियो का जो पुस्तक सीखने और पढ़ने को, तो शायद बहुत सारे महत्वपूर्ण बात मैं शायद समझने को छूट जाता और शायद बहुत लेट मेरे जीवन में मैं वो समझ पाता. So we learned in the last sessions about we started our last session was with Romans chapter 6 out of 6 to 8. हम लोग का पिछला सेशन रोमियो का 6 से हमने शुरुआत किया था. We will spend today and tomorrow, next week also studying these passages because there's a lot of good things that we need to understand around there. हम आगे का ये सैटरडे और अगला सैटरडे ही ये चैप्टर में ही हम थोड़ा समय बीतेंगे. And there should be one more session and then we should be finishing off with the book of Romans. और एक सेशन होगा जुलाई 18 तारीख को और उससे हम शायद रोमियो का पुस्तक का स्टडी समाप्त करेंगे. So let's see what we studied from book of Romans 6. रोमियो का 6वां अध्याय में हम लोग ने क्या सीखा वो हम जरा पढ़ेंगे. And try to understand a little bit more about what is mentioned over there. और इधर क्या बताया गया है उसको और गहरी रीति से समझने की कोशिश करेंगे. So we saw in verse 2 over there, Paul, right in chapter verse 1, Paul is asking a question, is this grace given to us to continue living in sin? And the answer was a very clear no. हमने पहला ही 6वां अध्याय का पहला ही वचन में ये पढ़ा. पौलुस पूछता है, क्या ये अनुग्रह परमेश्वर का जो अनुग्रह है, क्या पाप करने के लिए लाइसेंस है? और एक ही उत्तर आता है, वो है नहीं. And then we see from Romans chapter 6 verse 2 onwards, we studied and we saw last time what does it mean to be died to sin. और बाद में हमने सीखा कि पाप के विषय में मरना उसका अर्थ क्या है. And we died to sin through the death of Jesus, and we were made alive through his resurrection. हम यीशु मसीह का मृत्यु द्वारा हम पाप के विषय में मरते हैं और यीशु मसीह का जी उठने द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करते हैं. And we saw in the book of Romans 6 there were many places where died to sin has been referenced. रोमियो का 6वां अध्याय में ऐसा बहुत बार ऐसा लिखा है कि मृत्यु पाप के विषय में मरना. And in Romans 6:3 to 4 we also see about a reference being made about baptism. रोमियो का 6वां का 3 से 4 हम बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं. And there it is written, baptized into Christ, baptized into his death. हम ये सुनते हैं कि यीशु मसीह में बपतिस्मा, यीशु मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा. And being raised to walk in the newness of life. और परमेश्वर का नया जीवन में चलने के लिए परमेश्वर ने हमको जीवित किया गया है करके. There are many people who some of them do not believe that this is water baptism, some of them believe that this is water baptism and stuff.
Can you repeat what you said? Some of them don't believe that this is water baptism. Some of them believe that this is water baptism. What is mentioned over here? कोई लोग कहते हैं कि इधर जो बपतिस्मा लिखा है वो पानी का जो बपतिस्मा के विषय में लिखा है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं वो पानी का बपतिस्मा के विषय में नहीं लिखा है. So I'm not going to that part of it. तो मैं उस विषय की ओर नहीं जा रहा हूँ. But here there is a fact that is being told that we are baptized into his death. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के मृत्यु, यीशु मसीह के मृत्यु में हम बपतिस्मा के और हम बपतिस्मा, हमें बपतिस्मा दिया गया है. And like how we are baptism is a sign of burial, like how you go down into the water, the same way baptized into his death, like Jesus Christ was buried and then he rose again. At that same way how we come back up, we walk in the newness of life. बपतिस्मा का अर्थ यही है कि जैसा एक शरीर मरना है, जैसा एक शरीर जमीन में गाड़ा जाता है, तो बपतिस्मा में हम जब पानी में जाते हैं तो उसका अर्थ है कि हम मरते हैं. और जैसा यीशु मसीह जी उठा, कब्र से जी उठा, वैसा ही हम पानी के ऊपर नीचे से वापस आते हैं. तो वो उसका अर्थ ये है कि हम मरा यीशु मसीह में और हम यीशु मसीह का नया जीवन में हम जीवित होते हैं. So let's look a little bit more into this topic. तो हम इस विषय में और जरा सीखने की कोशिश करेंगे. We see Romans 6:3-5. We read about this last time. रोमियो का 6वां अध्याय का 3 से 5 तक हमने पढ़ा. And we saw, or do you not know that as of you were baptized into Christ, were baptized into his death? And the 4th verse is saying, therefore we were buried with him through baptism into death. यशपाल ब्रदर, आप रोमियो का 6वां अध्याय का 3 और 4 जरा पढ़ेंगे. हाँ, रोमियो का 6 का 3 और 4. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नई जीवन से चाल चलें. क्योंकि यदि हम उसकी समानता में उसके जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में जुट जाएंगे. So we were buried with him in baptism. यीशु मसीह के Through baptism into death. Sorry. यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा हमने पाया है. And it says that we are united together in the likeness of his death. ये इधर लिखा है कि यीशु मसीह का जो मृत्यु में हमको सब एक साथ जोड़ा गया है. And certainly we shall be like him in the likeness of his resurrection. और यीशु मसीह जैसा जी उठा उसमें भी हम एक साथ उसी प्रकार हम भी बनेंगे. So baptism is just that is what is portraying basically that we were buried with Christ on the cross when he died, and when he was buried, we also were buried with him, and when he rose again, we also were resurrected. तो बपतिस्मा ये चिन्ह है कि हम यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया था, हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हम भी मर गए हैं, और यीशु मसीह जैसा जी उठा है, हम भी यीशु मसीह का नया जीवन में हम भी जीवित हुए हैं. You see couple of references that explain this a little bit more. कुछ वचन ये और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला 2 वचन हम पढ़ेंगे. Colossians chapter 2 verse 12. कोलोसिया का 2 अध्याय का 12 वाक्य. Here also it again says, buried with him, with Christ in baptism. इधर लिखा है कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए. In which you were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे. So again here it is telling that we were buried with him, with Christ. तो इधर भी वही बात कह रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए थे. And baptism is a symbol of what happened. और बपतिस्मा जो बात हुआ है, जो हम यीशु मसीह के साथ जो गाड़े गए का जो अनुभव है,
उसका एक चिन्ह है बपतिस्मा। We became united with Christ when we believed in Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ एक हुआ जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। And when we took baptism, it was just a confession of what we believed. और हमने जब बपतिस्मा लिया वो हम जो विश्वास करते हैं उसका कबूल करना था बपतिस्मा। We read one more verse in relating to this, Galatians 2:20, the famous verse that we know. अब गलतियों का 2:20 का अध्याय भी इस विषय में बात करता है। It says, I have been crucified with Christ. वो वचन कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और अब मैं जो जीवन में जीता हूँ वो विश्वास से जीता हूँ जो परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझे प्रेम किया है और जिसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया है। So through all these verses, what do we understand? ये सारे वचनों से हम क्या समझ पाते हैं? It is not at the time of baptism that when I took baptism that this thing happened. इसका अर्थ ये नहीं है कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तब ये बातों मेरे जीवन में हुआ। Baptism is that expression of that inward reality that happened when I believed in Christ. लेकिन बपतिस्मा ये चिन्ह है कि जो मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय मेरा जीवन के अंदर क्या सच्चाई हुआ उसका बाहरी रूप का प्रकट होना है बपतिस्मा। The truth was that Jesus Christ was buried and I was buried with him. सच्चाई ये है कि यीशु मसीह गाड़ा गया था और मैं उसके साथ गाड़ा गया था। And that happened because God worked through faith. He gave that faith in my heart that I could trust in Jesus Christ's death on the cross. क्यों और वो हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय में वो विश्वास दिया कि मैं यीशु मसीह का मृत्यु के कारण ये बात मेरे जीवन में हो सकता है। And when Jesus was crucified, I was crucified with him. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। And that's why it says I have been crucified with Christ. और इसीलिए कहता है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। To walk in this newness of life. ताकि मैं इस नया जीवन में चलूं। That I can live by faith in the Son of God. और मैं परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास द्वारा जी सकता हूँ। Who loved me and gave himself for me. जिसने मेरे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So that gives us a little bit understanding about what this scripture is saying in Romans chapter 6. और तो ये वचन हमें और एक गहरा रीति से समझ दिलाता है जो रोमियो का 6वां अध्याय में कहता है। Then when we read the next passages, हम आगे पढ़ते हैं, we get to understand more. हमें और समझ मिलता है। For some time, let's just understand what is this regeneration. नया जीवन। It is that supernatural work of God in the heart of the believer. ये जो नया जीवन प्राप्त करना क्या है इसका अर्थ तो यही है कि परमेश्वर का जो काम है एक विश्वासी के जीवन में It brings him into union with Christ, what we read. जो उसे यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप में लाता है। So somebody who was really dead in sin, और तो ऐसा एक व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ था, he through faith in Jesus Christ is made alive in Christ. वो यीशु मसीह के विश्वास द्वारा उसे जीवित किया गया है। And that doesn't happen by that person just believing because somebody told. और किसी ने उसको उस व्यक्ति को ये बात कहा इसीलिए वो विश्वास कर पाया, ये सच नहीं है। That could be just one of the starting steps. वो शायद उसका शुरुआत हो सकता है। But that actual regeneration is the supernatural work of God of transforming the heart of that person. लेकिन वो जो बात है जो एक व्यक्ति को नया जीवन को प्राप्त करना है, जो नया जीवन जो जन्म होता है वो यीशु मसीह परमेश्वर जो उसके हृदय में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण बात है। Where that dead person is now being made alive. और वो जो मरा हुआ व्यक्ति जो था पाप में मरा हुआ व्यक्ति अब
वो नया जीवन प्राप्त कर रहा है। That's the same thing what we read in Ezekiel, where prophet is looking at all the dry bones around him. वही हम एजिकियल में पढ़ता है, जब वो भविष्यवक्ता चारों तरफ सूखा हड्डी देखता है। और So it's वो not that they are just some bodies that are almost dying. It's not like that. तो जब वो एजिकियल भविष्यवक्ता जब चारों तरफ देख रहा था, उधर सिर्फ सूखा हड्डियां पड़ा था, तो वैसा नहीं था कि वो मरने के हालत में था, या ऐसा एक अवस्था नहीं था। They were already dead and dry. वो पहले से ही मर के एकदम सूखा हड्डी बन गया था। And that is where the prophet asked the question, can this live? तो उधर ही भविष्यवक्ता ने ऐसा प्रश्न पूछा कि परमेश्वर, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकते हैं? And God said, yes, the Spirit of God can take out the heart of that stone and it can give a heart of flesh. तो तब ही परमेश्वर कहता है कि हाँ, मैं ये पत्थर का हृदय को हटाकर एक मांस का हृदय दे पाऊंगा करके। So in Romans chapter 6, then later parts of it, 11 to 14, we read that. तो रोमियो का आगे 6वां अध्याय का आगे का भाग में हम ये पढ़ते हैं। Let's read 11th verse. 11वां वचन पढ़ेंगे। Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin. वो 6वां अध्याय का 11वां वचन यशपाल भाई जरा पढ़ेंगे। हाँ ब्रदर पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, likewise you reckon, you understand, you acknowledge that you yourselves have died to be dead indeed to sin. तो हम पौलुस कहता है कि तुम ये बात समझो और स्वीकार करो कि हम पाप के लिए हम मरे हैं। All through chapter 6 he was saying about being dead to sin through Jesus Christ's death on the cross. पहला कहता था कि तुम यीशु मसीह के मृत्यु द्वारा हम भी पाप के विषय में यीशु मसीह के क्रूस पर हम भी मारे गए हैं। And now he's saying, now you reckon, you understand this and you acknowledge it that you are dead to sin. तो पौलुस अब कह रहा है कि तुम ये बात को स्वीकार करो, ये बात को समझो कि आप पाप के विषय में आप मर गए हैं। So there is no doubt about it. It is a confirmation. It is a true thing that has happened, that God has done. तो इसके ये विषय में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये एक पूरा एकदम श्योर बात है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। But then does it mean that a person who is dead to sin will no more anymore sin? There will be no sinless life. Is that what is intending? क्या इसका अर्थ है कि क्या एक मसीह में एक व्यक्ति आगे कभी पाप नहीं करेगा और उसके जीवन में कोई कभी पाप में वो गिरेगा नहीं? No, because we read the next verse 12 and 13. क्योंकि हम वो लेकिन आगे वचन में हम वो पढ़ते हैं 12 and 13. Can you read brother? 13 14 12 13 14 12 13 और 14 जरा पढ़ेंगे यशपाल भाई। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी अभिलाषा के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रवृत्ति न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So Paul here is telling that you reckon yourself that you are dead to sin and alive to God in Jesus Christ. तो पौलुस कहता है कि तुम ये बात समझो, स्वीकार करो कि तुम मरे हुए में से नहीं बट यीशु मसीह में जीवित हुए में से हो। And then he says, therefore do not let sin reign in your mortal body. तो इसे कहता है कि इस कारण क्योंकि तुम परमेश्वर में जिए गए हो, पाप को अपने शरीर में राज करने ना दो। Therefore don't present your members as instruments of unrighteousness to sin. इसीलिए तो कैन यू रिपीट दैट? Therefore don't present your members as instruments of unrighteousness to sin. इसीलिए हम अपने शरीर के अंगों को पाप के
के अधर्म का हथियार होकर. अधर्म का हथियार होकर ना सौंपे. So realize what we are in Christ. ये समझो कि हम परमेश्वर में क्या है. Realize our own identity in Christ. हम परमेश्वर में हमारा क्या आइडेंटिटी है उसको समझो. We have been delivered from the old identity of Adam and been given a new identity in Christ. हमें आदम का जो आइडेंटिटी था उससे हमें छुटकारा देकर वो हटाकर हमें यीशु मसीह में एक नया आइडेंटिटी दिया है. And then from verse 15 to 23 is saying about, okay, you were once slaves of sin, now you have been converted and you are now slaves of righteousness. तो आगे वो कहता है कि पहले तुम पाप की तुम अधर्म के अधीन थे लेकिन अब तुम धार्मिकता के अधीन हो. And in 17th verse he's saying, God be thanked who has done this work in you. और 17वां वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने ये काम तुम्हारे जीवन में दिया है. He made it possible for you to obey from your heart. परमेश्वर ने ये संभव किया ताकि तुम अपने हृदय से विश्वास कर पाओ. So there is a physical birth that happens through Adam and we got it inherited through our parents. हमारे एक शारीरिक रीति का एक जन्म हुआ जो हम आदम से प्राप्त करते हैं. हम हमारे माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी में हम एक ये शरीर प्राप्त करते हैं. And that is dead in sin. और वो जो शरीर है पाप में मरा हुआ एक शरीर है. And Romans 6:6 says, old man was crucified with Christ. पौलुस वचन कहता है कि जो हमारा जो पुराना जो शरीर है पुराना जो मनुष्य है वो यीशु मसीह के साथ क्रूस में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया है. Galatians 2:20 we already saw, I have been crucified with Christ. गलेशियन हमने पढ़ा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. So this, whoever is born over here is born for condemnation and death. या तो इस प्रकार जो भी जन्म लेता है उसका अंत मृत्यु है. Whoever is born over here is going to be a slave of sin and slave of unrighteousness. जो भी इधर जन्म लेता है वो पाप का अधीन में होगा और दुष्टता का अधीन होगा. And then what happens is that the Holy Spirit works in their lives to regenerate. और क्या परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा द्वारा उनके हृदय को में एक नया जीवन बदल देता है, नया जीवन उनको देता है. So I heard the gospel, I believed in Christ, I accepted Jesus, I chose to live, but there is that particular time period when Holy Spirit works in the inside of my heart and converts and regenerates me into a new being. तो मैं जब परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनता हूँ और तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में विश्वास द्वारा मेरा हृदय को बदलता है और मुझे एक नया सृष्टि में मेरे को बदलावट करता है. That is what it means by born again. उसका अर्थ है नया जीवन प्राप्त करना. So once you are dead in sin, now you are made alive to God. पहले हम पाप में मरे हुए थे, अब हम परमेश्वर में नया जीवन में जीवित हुए हैं. Now you are united with Christ. अब हमें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमें एक बनाया गया है. In Christ you are a new creation. पर यीशु मसीह में हम एक नया सृष्टि है. You are headed towards eternal life. हम अनंत जीवन की ओर हमारा जीवन जा रहा है. You are always having that renewal of the mind. और दिन प्रतिदिन हमारा मन को नया बनाते जा रहा है पवित्र आत्मा. Through the word of God and through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा द्वारा और परमेश्वर के वचन द्वारा. And you are converted as a slave of righteousness and slave of God. और हमारा बदलाहट इस प्रकार हो रहा है कि हम धार्मिकता के अधीन है और हम परमेश्वर के अधीन बन रहे हैं. And now you experience a victory over the power of sin. और हम अब पाप के शक्ति के ऊपर विजय हम अनुभव करते हैं. And moreover you experience that experience of being God's child. और हम ये अनुभव करते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं. So in case even if you are going away in sin or falling away, अगर हम में से कोई पाप में गिर रहे हैं और हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं,
As a father chastens his children, God chastens us to bring us back to him. एक पिता जैसा अपना पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही प्रेमी पिता हमें ताड़ना देकर हमें वापस अपनी ओर खींचता है. If you are not getting that chastening and if you are not coming back to God, you might be in this still in this stage. अगर हम परमेश्वर से ताड़ना हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं और हम परमेश्वर की ओर वापस हम मनसरा कर वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसका अर्थ शायद हम अभी भी पुराना आदम का स्टेज में अभी भी अटक के है. So this is what is happening, is the spiritual birth that is happening. अभी जो हो रहा है वो है एक नया जीवन का जो अनुभव हो रहा है. And what happens over here is the flesh that we have over here. तो इधर जो हमारा जो पहले जो जीवन का जो हमारा जो शरीर है, When we were born again, we did not die in the flesh. वो हमारा जो शरीर जो है वो मरता नहीं है. Our body did not die. हमारा शरीर मरता नहीं है. A body which is corrupt and which is not regenerated is still there with us. हमारा शरीर जो दुष्ट है, जो करप्ट है, वो अभी भी हमारे साथ है. So that continues till the point when we will be completely physically dead. जब तक हम शारीरिक रीति से मरते नहीं, हमारा आखिरी सांस लेते नहीं है, तब तक ये शरीर हमारे साथ होगा. Or until Christ comes back. नहीं तो जब तक यीशु मसीह वापस हम पृथ्वी पर आए. And we will receive a new resurrected body. और तब हम एक नया जीवन का एक शरीर हम प्राप्त करेंगे. So until the time we are living in this flesh, तो हम इस शरीर में जब तक हम जीवित है, उस समय तक we will have these desires of the flesh which is against what God wants. हमारा शरीर का इच्छा ऐसा होगा जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध होगा. So if we had died over here when we received Jesus Christ itself physically, अगर हम अभी वही पुराने स्टेज में अगर हम हमारे शारीरिक रीति से अगर हम मर गए होते, तो just after we got regenerated, we died. अगर समझो हम नया जीवन, सॉरी मैंने गलत बोला था पहले, अगर हमने नया जीवन प्राप्त करके तुरंत उसी समय में अगर हमारा अगर शारीरिक रीति से मृत्यु हुआ होता, तो we go to the heavenly presence of, हम तुरंत यीशु मसीह के सन्निधि में हम जाएंगे. there will be no more sin over there. और उधर पाप नहीं होगा. We will be completely free from the presence of sin itself. हम पाप से हम पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करेंगे. But because we are still living in the flesh, लेकिन हम अभी भी इस शरीर में हम जीवित है, इस कारण the desires of the flesh war against those which is there in the spirit. हमारा शरीर का इच्छा वो परमेश्वर की इच्छा से विरोध करता है. So if that kind of a war is not happening within our hearts, अगर ये परमेश्वर का इच्छा और हमारा इच्छा का जो एक लड़ाई है, अगर वो हमारे हृदय में अगर वो नहीं हो रहा है, तो then it is a question mark whether we are really regenerated or not. तो उसका अर्थ ये कि एक प्रश्न, एक सवाल उठता है कि क्या हम सच्चाई में यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त किए हैं कि नहीं? Because the Holy Spirit will always prompt me to get conviction of sin and come back to God. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे इसी बात का कन्विक्शन देता है, पाप के विषय में कन्विक्शन व्हाट इज से समझ, पाप के विषय में समझ देता है और मुझे वापस परमेश्वर पिता की ओर वापस मन फिराई में ले चलाता है. But if that Holy Spirit is not working in my heart, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम नहीं कर रहा है, तो then I will continue in sin. तो मैं पाप में ही आगे बढ़ता जाऊंगा. So that is the reason why Paul is saying, do you think that you will get a lot of grace that you can continue living in sin? तो इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत अनुग्रह मिलेगा ताकि तुम पाप में ही और आगे बढ़ते जाओ. Christ did not save us to continue for us to continue living in the lifestyle of sin. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपना जान बलिदान इसलिए नहीं दिया ताकि हम हमारा जीवन पाप में ही बढ़ते जाए. Let's go to the next part. So Holy Spirit is continuing through the journey of the believer
after being born again, to make sure that he is continuously guiding him till the end of his life. तो पवित्र आत्मा जो है उद्धार प्राप्त करने के समय में उसका काम रुकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आने तक, यीशु मसीह का जीवन उसमें शुद्ध परफेक्ट होने तक पवित्र आत्मा एक विश्वासी के साथ आगे बढ़ता है. So Holy Spirit's work is not something that only happens in some meetings or somewhere where you are in the presence of children of God. तो पवित्र आत्मा का काम तभी नहीं है, जब उसका काम उतना ही नहीं है जब कि वो सिर्फ परमेश्वर के सन्निधि में कोई प्रार्थना या मीटिंग या मंडली में ही होता है. That Spirit of God is responsible for transforming your entire life. वो पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है कि हमारा पूरा जीवन का पूरी तरह बदलाहट हो. And not just being a power, वो सिर्फ एक शक्ति ही रहे वो नहीं, but बल्कि he is that person in that Trinity who is indwelling in me, and he is the helper who will reach me to my home. लेकिन वो परमेश्वर का वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर का जो ट्रिनिटी का वो पर्सन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर ही है खुद जो हमारे जीवन में हमें हर एक सच्चाई में ले चलाता है. So let's go to the next one now. If you look at this picture, हम आगे का विषय की ओर जाएंगे. अगर एक चित्र ध्यान से देखेंगे तो is a most commonly told example by many preachers. बहुत सारे प्रचारों से सिखाने वाला एक उदाहरण है ये. So if you look at this is the pigs are actually putting their face inside the garbage bin. हम अगर दिखेंगे तो ये जो सुअर है कचरे का डब्बे में उनका मुंडी घुसा रहा है. And they are really enjoying it. और वो लोग उसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है इसमें. They are completely involved and engrossed in it. वो लोग पूरा उसमें ही मगन है. They love it. उनको बहुत पसंद है. Now this was exactly what our case was. ऐसा ही ये जो चित्र है वैसा ही हमारा भी अवस्था था. Just imagine that, okay, there is a supernatural work of God that happens in our heart, in this pig's heart, and that heart is changed as a man's heart. अगर समझो कि ये जो सुअर है उसका हृदय में एक बहुत बड़ा बदलावट हो गया और उसे एक इंसान का हृदय मिल गया उसे. Can you imagine whether that pig will continue to put his head inside that garbage? क्या आपको लगता है कि अगर वो सुअर को एक साधारण मनुष्य का एक अगर हृदय मिल गया तो क्या वो वापस वही कचरे के डब्बे में उसका मुंडी घुसाएगा? Do you think any of you, even me, will I put my head inside this garbage bin? क्या आपको लगता है कि क्या हम में से कोई भी व्यक्ति, हम में से मैं भी, क्या मैं कभी ऐसा ही कचरे के डब्बे में मेरा सिर डुबाएगा? Immediately we'll come out and we'll try to vomit or do what, I don't know, 5 days we might put sanitizer in our mouth or what. We will be completely restless. अगर गलती से हमारा मुंडी या सर गलती से ऐसा कचरे के डब्बे में गया तो हम तुरंत बाहर निकल के उल्टी करेंगे. साफ जितना भी हो सके हम अपने आप को साफ सफाई करते रहेंगे. This is what God does in the life of a believer. तो एक विश्वासी के जीवन में यही काम परमेश्वर करता है. Once upon a time slave of sin, एक समय में जो पाप का जो अधीन था, वे व्यक्ति, God through the Holy Spirit transforms the heart of this person. परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा द्वारा इस व्यक्ति का हृदय को बदलावट देता है और in such a way that he hates these things. और इस प्रकार से बदल देता है कि वो जो पाप का अधीन था वो व्यक्ति अब वो पाप से घृणा करता है and starts loving God. और वो परमेश्वर को प्रेम करना शुरुआत करता है. There was no possibility that a believer could love God. एक विश्वासी अपने आप से परमेश्वर
को प्रेम करे ऐसा असंभव बात था। But God, through His Holy Spirit, transformed in his heart that and made that change in him to give him a new life. And that new life is this: that he gets a longing to God, and he comes close to God. लेकिन परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा द्वारा उस व्यक्ति का हृदय को बदल देता है और उसको परमेश्वर की ओर का प्रेम और परमेश्वर की ओर एक चाहत उत्पन्न होता है। So regeneration is the supernatural work of God in our lives, whereby God's Spirit transforms our heart into a new creation in Christ. तो नया जीवन प्राप्त करने का अनुभव यही है कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य द्वारा हमारा हृदय को बदलावट देता है और हमें यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बनाता है। It does not mean that it's going to be a sinless, perfect life after the moment I believed in Jesus Christ. The moment I am saved, now onwards, my life will be a sinless perfection. No, it is not like that. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे से मुझे मेरा जीवन में कुछ पाप नहीं होगा और मैं कभी गलती ना करूंगा। But the direction is changed. लेकिन मेरा जीवन का जो डायरेक्शन है, मेरा जीवन का जाने का जो रास्ता है वो बदल जाता है। Paul says, I have not yet attained any of these things. पौलुस कहता है कि मैं अभी तक वो जो सारे बातों को मैंने अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं किया हूँ। And he says, I press on toward the goal of that upward call of God in Jesus Christ. वो कहता है कि मैं उस यीशु मसीह में जो महान बुलावट है उसके और मैं दौड़ कर चाहता हूँ और मैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं चल रहा हूँ। I am trying to hold to him, but he has held me. पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को पकड़ के रखना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे पकड़ के रखा है करके। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. इस कारण कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह में है तो वो एक नया सृष्टि है। And old things have passed away. पुराने बातों बदल गया है। Behold, all things have become new. इस कारण देखो, इस कारण सारे बातें नया बन गया है। We often say this verse during baptism. हम बपतिस्मा के समय में ये वचन हम कबूल करते हैं। But the reality of this happens when our life is in Christ. लेकिन इसका सच्चाई तब होता है जब हमारा जीवन यीशु मसीह में है। So it could be happening that somebody took a baptism, but then that person was not a new creation still. लेकिन शायद कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एक बपतिस्मा ले लिया लेकिन उसने यीशु मसीह का नया जीवन तब तक प्राप्त नहीं किया होगा। So in many times what happens in our lives is something like this. हमारा जीवन में कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि I'm not sure if you brothers and sisters might have experienced this, but we sometimes experience in our family life. कभी-कभी हमारे पारिवारिक जीवन में हम ऐसा ये बात अनुभव करते हैं कि so both of them are angry and shouting at each other, husband and wife. पति पत्नी दोनों के और गुस्सा है और दोनों एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं। So we already died to sin. How did this happen then? लेकिन तो हम पूछेंगे कि टाइटस भाई, आपने कहा कि हम तो पाप के और मरे हुए हैं, तो ये कैसा हो रहा है वापस? This is because our fleshly desires are still existing and warring against what is God's will. ये इस कारण होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर का जो इच्छा है अभी भी परमेश्वर के इच्छा के और विरोध करता है। And then what happens? और उसके बाद क्या होता है? No talking to each other. बात नहीं करते एक दूसरे से। But this is where God's work happens in our lives. लेकिन इसी जगह पे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। Does the Holy Spirit come and tell you that you need to be reconciled with your wife, with your husband? क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा आके आपको याद दिलाता है कि आपका पति आपका पत्नी से आपको क्षमा मांगना है और आपको मेल मिलाप करना है? Does it tell you that you got angry and that is not right? क्या पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि आपने क्रोध किया और वो आपने जो किया वो सही नहीं किया? Does it tell your heart that you spoke rudely and you spoke harshly? You need to ask forgiveness.
क्या आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि आपने एकदम चोट पहुंचाने वाले रीति से बात किया, इस कारण आपको क्षमा मांगना है? Or it allows you to sleep well and in peace? या कि इतना झगड़ा करने के बाद भी कि आपको एकदम चैन की नींद सोने देता है? I am not bothered about what happens in my life. क्या मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है? Is this happening in your life? क्या ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है? Or is God actually working in our hearts to reunite us, even if there are fleshly desires getting revealed in our lives? लेकिन क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है जब भी हमारा शारीरिक इच्छाएं हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, तब क्या पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में काम कर रहा है? Are you encouraged to reconcile before the sun sets? क्या सूरज ढलने से पहले मेल मिलाप करने के लिए क्या हमें प्रोत्साहन मिल रहा है? This is some of the signs that comes in our lives. This is just an example that I picked up. ये एक उदाहरण है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की हमारे जीवन में काम कर रहा है। It could be in your individual lives. आप हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। Do we see a struggle with sin? क्या हम पाप के विषय में एक what do you say for struggle? परिश्रम. क्या हम पाप के विषय में हमारे जीवन में एक परिश्रम अनुभव कर रहे हैं? If we do not see a struggle with sin, there is something is wrong. अगर पाप के विषय में हमारे जीवन में कोई संघर्ष अगर नहीं है, परिश्रम नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। If you are in this situation and you can live for 1 month, then something is really wrong. अगर समझो हमारा जीवन, हमारे पति या पत्नी से हमारा मेल मिलाप नहीं हो रहा है और हम एकदम आराम से 1 महीना बीत गया है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका अर्थ ये है कि हमारे हृदय में कुछ तो गलत चल रहा है। Holy Spirit is convicting us of sin, righteousness and judgment. पवित्र आत्मा हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें समझ देता है। It is not to condemn us. हमें दोष लगाने के लिए नहीं, but it is to remind us that we have been dead to sin. लेकिन हमें इस कारण याद दिलाने के लिए कि हम पाप के विषय में मर गए हैं। Therefore, come back. Therefore, don't put your members as members of unrighteousness. इस कारण वापस लौट कर आओ, परमेश्वर के पास वापस लौट कर आओ और तुम्हारे जो शरीर के अंग है उसे अधर्मी के अधर्म का टूल, हथियार। हाँ, अधर्म का हथियार ना बनाओ। Therefore, don't continue in the sin that you are doing. इस कारण तुम जो पाप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ो मत। Come back to God, repent and confess to God. मन फिराओ, कबूल करो और परमेश्वर के पास वापस आओ। If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. अगर हम कबूल करके मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा, सारी बातों में क्षमा देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। So God is able to deliver us from the penalty of sin. परमेश्वर हमें पाप का जो दंड से बचाने के लिए तो हमें पाप का दंड से बचा सकता है। God will deliver us from the power of sin. परमेश्वर हम पाप का ताकत से हमें बचाएगा। And one day God will deliver me from the presence of sin. और परमेश्वर हमें, और एक दिन परमेश्वर पूरी तरह पाप से हमें बचाएगा। Each day He will make me more and more perfect, little by little, according to His image. He will keep transforming and converting me. परमेश्वर दिन प्रतिदिन एक कदम लेकर स्टेप बाय स्टेप मुझे परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के जैसा मुझे बना के रहेगा। Let me quickly move ahead. I think we spent a lot of time there. Salvation is a process and journey. उद्धार पाना जो है एक क्रिया है और एक यात्रा समान है। एक क्रिया है और एक यात्रा समान है। So it is like you have been saved, you are being saved, and you will be saved. हम उद्धार प्राप्त किया है, हम उद्धार प्राप्त कर रहे हैं और हम और उद्धार प्राप्त करने वाले हैं। Sanctification is an important step in the process of salvation of a believer. पवित्रता जो प्राप्त
पवित्रकरण जो है वो एक विश्वासी के जीवन में जो उद्धार का क्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। It is the work of God's grace, whereby we are renewed in the whole man according to the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. वो परमेश्वर का अनुग्रह का काम है जिधर हमारा पूरा मनुष्य नया बनता है परमेश्वर के समान, जिधर हम पाप के विषय में मरते हैं और धार्मिकता के लिए जीते हैं। It is that ongoing divine transformation of our character. It frees us from our sinful habits and forms in us Christ-like affections, Christ-like virtues are developed in us. पवित्रकरण ऐसा बात है जिधर हमारा एकदम परमेश्वर द्वारा जो हमारा जीवन में जो बदलाव आता है, हमारा स्वभाव में एक ऐसा बदलाव आता है कि जो भी हमारे जीवन में पाप का जो हैबिट्स है उससे हमें छुटकारा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के जो क्रिया है, यीशु मसीह समान जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, स्वभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। It is that moral renovation which happens where we are increasingly changed from what we were once through the indwelling Holy Spirit's work. That change keeps happening in our life. वो ऐसा एक बात है, एक जो नया बनाने वाला एक ऐसा बात है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा जो हमारे अंदर वास करता है, हम जो पहले थे उससे हमें दिन प्रतिदिन एकदम बहुत बदलावट देता है ताकि हम पहले जैसे थे वैसे बिल्कुल ना बने। Regeneration is new birth, sanctification is growing. नया जो परमेश्वर का जो उद्धार है वो नया जीवन प्राप्त करना है और जो पवित्रकरण जो है वो वही जीवन में हमारा बढ़ोतरी होना। So the new birth has happened, but now we need to grow in Christ to his stature. नया जीवन हम प्राप्त किया है यीशु मसीह में, लेकिन हमें यीशु मसीह जैसा बनने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना है। In 1 Thessalonians 4:3 we see that it is the will of God is your sanctification. पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि पवित्रकरण तुम्हारे लिए परमेश्वर का इच्छा है। Philippians 2:12 says, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to do his good pleasure. फिलिपियों का 2:12 में है कि तुम्हारा उद्धार के लिए तुम डर भय से काम करो क्योंकि परमेश्वरी हो जो है जो तुम्हारे जीवन में काम करता है और अच्छे काम और तुम्हारे जीवन में इच्छा भी देता है। So this work of sanctification is also something that God enables us to do. कि जो पवित्रकरण का जो क्रिया है हमारे जीवन में वो भी काम परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा वो हमारे जीवन में होता है। Two forces are acting in the journey of the true believer. ये जो एक नया एक सच्चा विश्वासी के जो जीवन का यात्रा में दो महत्वपूर्ण फोर्सेस काम कर रहे हैं। At least some of you might have seen Pilgrim's Progress written by John Bunyan. Pilgrim's Progress नाम का जो पुस्तक है जॉन बनियन द्वारा, वो आपने पढ़ा होगा। He received that revelation of God that this is the life of a Christian. उससे एक रेवलेशन परमेश्वर से मिला कि एक मसीह का जीवन ऐसा है। So it is a journey. वो एक यात्रा है। And in that journey there was always this force that pulls forward and there's force that pull backward. और तो ये मसीह का जीवन का यात्रा में दो ताकत है, एक ताकत उसे पीछे खींचता है, एक ताकत उसे आगे खींचता है। Spirit pulls forward, flesh pulls backward. जो आत्मा है वो उसे आगे खींचता है, लेकिन जो शरीर है उसे पीछे खींचता है। And this battle was faced by even all the apostles, including Apostle Paul. और ये जो लड़ाई है सारे मसीह लोग सहन करते हैं, परमेश्वर के दास लोग, अपोस्तल लोग भी इसे सहना, और पौलुस अपोस्तल भी ये लड़ाई सहना पड़ा उसे। Even Jesus, it is mentioned that the days of his flesh he was tempted in all points as we are yet without sin. वचन कहता है कि यीशु मसीह खुद जब इस शरीर में जीते थे सारे बातों में यीशु मसीह को परीक्षा सहना पड़ा। So that brings us to Romans chapter 7. We'll quickly go through it. We'll not go through every verse. तो हम उस आगे हम रोमियो का 7वां अध्याय में हम पहुंचते हैं।
In first verse to third verse, you see an example given over there, a comparison between a married couple. पहला वचन से तीसरा वचन तक हम एक ये पढ़ते हैं, एक जिधर एक शादी किया हुआ पति पत्नी को परमेश्वर का जो व्यवस्था के साथ में व्यवस्था और यीशु मसीह का तुलना होता है. So here what you see over here, the law binds the married man and woman together as long as they are alive. तो यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाता है कि जो व्यवस्था है एक पति पत्नी को जोड़ता है जब तक वो लोग जिंदा है. So when one of them dies, they are free from that law and they can remarry. तो जब उसमें से एक व्यक्ति जब गुजर जाता है तो दूसरा व्यक्ति वो व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त करता है और वो कोई और व्यक्ति को व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं. Paul is using this as an example to show us how it is with Christ. तो पौलुस ये उदाहरण हमें ये देखकर ये समझाना चाहता है कि यीशु मसीह के साथ कैसा है. So when the believer in Christ dies with Christ, तो जब एक विश्वासी यीशु मसीह में मरता है तब that law which was there is no longer now applicable as it did. तो व्यवस्था उसके जीवन में उस प्रकार वो व्यवस्था के अधीन नहीं था जैसे वो पहले था. In the same way, when the husband or wife died, that person was free to marry again. उस कारण जैसा पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई पति या पत्नी मरता है तो वो दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति से शादी करने की या विवाह करने के लिए फ्री है. Because we died with Christ, क्योंकि हम यीशु मसीह में मर गए हैं, इस कारण law is no longer applicable as it did. व्यवस्था हमारे ऊपर उस प्रकार हमारे ऊपर राज नहीं करता जब जैसे पहले था. Hence we are not under the law, we are under grace. इस कारण हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है. And then we see verse 4. हम चौथा वचन देखेंगे. Therefore, my brethren, you have also become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him, to Christ, who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. यशपाल भाई रोमियो का 7 का चौथा वचन जरा पढ़ेंगे. वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं. So we died to the law, and spiritually we were united and joined to a person, Jesus Christ, who is alive, who was raised from the dead. हम मसीह के देह द्वारा व्यवस्था के लिए हम भी मर चुके हैं और हम यीशु मसीह के साथ जुड़े गए हैं. So the reality of our life is that we are joined together with Christ, and Jesus Christ is alive with us as a person, as a real person. तो हमारा जीवन का सच्चाई ये है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े गए हैं और यीशु मसीह जीवित है और हम वही जीवन में जीवित है. Therefore we are not under the law but under the grace. हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है. But that doesn't mean that we will sin more. तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम और पाप करेंगे. So Christ is the husband, and the aim of the marriage is to bear fruit for God. तो इस विवाह का जो उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के लिए फल लाना है. And this means that you don't go on sinning, you don't continue to live in sin. तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करते रहेंगे, लेकिन हम Because I am joined to Christ, I will bear more fruit to God. Fruit for God. लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया है, उस कारण मैं और फल परमेश्वर के लिए और फल उत्पन्न करूंगा. So there will be new desires, new affection, new actions that come through this union with Christ. तो इस कारण मेरे हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा नया इच्छा है परमेश्वर की और नया इच्छा है प्रकट होगा.
And in verse 5 and 6, we see about the law, that it is actually arousing all our sinful passions, and we are delivered from the law. We serve in the newness of the spirit and not in the oldness of the letter. It talks about old covenant and new covenant. We'll not go there. तो आगे 6वां वचन में हम देखता है कि पौलुस कहता है कि कैसा जो व्यवस्था है हमारे हृदय का, जो पाप का जो इच्छा है वो सब प्रकट करता है, और हमें व्यवस्था से छुड़ाया गया है, और हम पवित्र आत्मा में हम वो नया जीवन का अनुभव में हम पवित्र आत्मा द्वारा जीते हैं। And in 7 to 12, he is saying law is good, holy, it reveals our sin. तो और 7वां वचन और 12वां वचन तक वो पौलुस कहता है कि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था अच्छा है, और व्यवस्था हमारे जीवन के अंदर जो पाप है उसे प्रकट करता है। But law cannot save us from sin. लेकिन व्यवस्था हमें पाप से छुड़ा नहीं सकता। And that is what Paul says in verse 13 to 21. और 13वां वाक्य से 21 वाक्य तक पौलुस वो कहता है, He says, I don't know what I'm doing. पौलुस कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, I am sold under sin. मैं पाप में मैं बेच गया हूँ। It's not that Paul is saying this after, before his conversion, some story or something. तो पौलुस उद्धार पाने का 4-5 साल के बाद ये कहता नहीं है। He is saying this as a reality of his life. In his everyday life, he is facing this struggle. लेकिन पौलुस कहता है कि बहुत सालों बाद भी मेरा प्रतिदिन मेरा डेली लाइफ में ये एक लड़ाई है, मैं महसूस कर रहा हूँ। Verse 18, he says, in my flesh dwells nothing good. 18वां वचन में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा बात नहीं है करके। And 19-20 he is saying, what I don't want to do, that I'm doing. पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। We fed up with this defeated sort of life. वो एक ये जो हरा हुआ एक जो अवस्था से वो पौलुस तंग हो चुका है। But he is still continuing that particular fight and war he's seeing in his life. लेकिन वो जो लड़ाई है अपना शरीर और आत्मा के विरोध, जो पुराना इच्छा नया इच्छा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई पौलुस जारी रखता है। It is like that example which Emmanuel some time back gave us about तो the old इमानुएल ने and जो new एक उदाहरण दिया nature, था हमें पहले, from Charles Spurgeon, dead body, tied closely to our physical body. एक मरा हुआ शरीर जो एक जीवित शरीर के साथ जो बांधा गया है, वैसा जो एक उदाहरण दिया उस Always प्रकार carrying this dead man. वो हम हर वक्त एक मरा हुआ एक शरीर लेकर चल रहे हैं। So in a believer's life, there is going to be this struggle between, the old nature and the new nature. तो एक विश्वासी के जीवन में ये लड़ाई जरूर होगा, उसका पुराना इच्छाओं के साथ और नया इच्छाओं जो परमेश्वर ने प्राप्त किया, उस दोनों के विरोध जो लड़ाई है वो एक लड़ाई प्रतिदिन होगा। So in this passage, you see Romans chapter 7 verse 22 to Romans chapter 8 verse 2. तो हम ये जो अगला भाग में हम ये देखते हैं रोमियो 7वां अध्याय का 22 से लेके 8वां अध्याय का 2 वचन तक। So what does Paul say? पौलुस क्या कहता है? Right, delight in the law of God according to the inward man. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। So if you see in the Old Testament also, law of God, I delight in the law of the Lord, and all these kind of things were there. पुराने नियम में भी हम ये बात पढ़ते हैं कि व्यवस्था में बहुत प्रसन्न रहना। But he is saying, but I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is there in my members. परंतु मुझे अपने अंगों में एक दूसरा प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ता है जो मेरे बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। Remember Romans 6, he already told us, you reckon yourselves dead to sin. रोमियो का 6वां अध्याय में पौलुस ने हमें कहा कि तुम ये बात समझो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। But now he is saying there is a war in my members, in the body that I have. लेकिन पौलुस अभी कहता है कि मेरे शरीर में अभी एक लड़ाई विरोध चल रहा है।
In fact, 24th verse is saying, "Oh wretched man that I am." वो 24वां वचन में कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य है, Who will deliver me from this body of death? मुझे इस मृत्यु, पौलुस पुकारता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Answer is in the 25th verse. 25वां वचन में उसका उद्धार है, Through Jesus Christ our Lord. परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। We look at Romans chapter 8, verse 1. रोमस का 8वां अध्याय का पहला वचन हम देखेंगे तो This is not something that he preached on another day or something. Romans 8. वो दूसरा दिन प्रचार किया हुआ ये बात नहीं है, It was a continuation of a letter that he wrote to the to the people in Rome. ये एक ही पत्र में पूरा ये लिखता है। And 8th verse he is saying, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." तो आगे पौलुस कहता है कि अतः अब जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। So in Christ Jesus, यीशु मसीह में 25th verse is saying, "Through Jesus Christ our Lord." 25वां वचन में कहता है कि यीशु मसीह द्वारा, I have victory over this particular thing. यीशु मसीह द्वारा मुझे इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त है। So if you look at the green things, you know that green things are law of God, law of my mind. These are all good things, law of God. जो हरा भाग में, जो ये स्लाइड में हम स्क्रीन में देखते, जो हरा भाग में जो कलर किया हुआ है वो सब परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का अच्छी बातों का जो करे जो है उसको मार्क किया है। But the red ones are, another law, the law of sin. लेकिन जो लाल भाग में मैंने मार्क किया है वो एक विरोध करने वाला व्यवस्था है, वो पाप का व्यवस्था है। Law of sin and law of death. पाप का व्यवस्था, मृत्यु का व्यवस्था, मृत्यु These की both व्यवस्था, are always warring against each other. ये सब परमेश्वर की व्यवस्था के साथ लड़ाई में है। But verse 25 he says, "I thank God, victory is through Jesus Christ our Lord." तो पौलुस 25वां वचन में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे इस लड़ाई पर पाप के व्यवस्था की और विजय प्राप्त करता हूँ। So those who are in Christ Jesus, इसीलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह में है, they do not have any condemnation. उन पर दंड का कोई आज्ञा नहीं है। Romans chapter 8 verse 1 and 2, no condemnation in Christ Jesus. रोमियो का 8 का 1 और 2, यीशु मसीह में कोई दंड का आज्ञा नहीं है। Verse 3 to 39 we'll see in the next part. वचन का ये तीसरा और 39 का भाग हम अगला समय में पढ़ेंगे। The text tells us more about this portion where about the flesh and the spirit, the war between the flesh and the spirit. ये जो शरीर और आत्मा के विरोध जो लड़ाई चलता है उस विषय में और गहरी रीति में वो समझाता है। And it tells us about the sonship that we received through the Holy Spirit. तो हम और हमें ये सिखाता है कि हम जो पुत्रत्व का जो अनुभव पवित्र आत्मा द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं। And chapter 8 last ending portion is so amazing. Who is there who can bring a charge against God's elect? और 8वां अध्याय का अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस कहता है कि ऐसा कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरोध कोई आरोप ला सकता है। It is God who justifies. क्योंकि परमेश्वर ही है जो खुद धर्मी ठहराता है। And if God, who did not spare his only son from being given for us, और पौलुस कहता है कि वो ही परमेश्वर जिसने अपना पुत्र को भी अपने लिए नहीं छोड़ा बल्कि अपना पुत्र को भी हमारे लिए बलिदान दिया, shall he not with that give everything that we require for life and godliness? क्या वो परमेश्वर हमें सब कुछ नहीं देगा जो हमें धार्मिकता और इस जीवन के लिए जरूरी है। Verse 35 says, "Who can separate me from this love of Christ?" आगे पौलुस कहता है कि कौन है जो मुझे इस परमेश्वर का प्रेम से मुझे अलग कर सकता है। 37th verse he says that in all these things I am more than conquerors. और आगे कहता है कि इन सारे बातों में मैं विजयी है। विजयी है।
उसके द्वारा वो through him who परमेश्वर loved द्वारा us. जिसने मुझे प्रेम किया। And I know nothing, death, no principalities, no powers, nothing, no height, weight, nothing can be separating me from the love of Christ that God has united me in Jesus Christ. और आगे कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्या मृत्यु या जीवन या कोई बात नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता That है। is what, being in Christ, there is no condemnation. इसका यही मतलब है कि परमेश्वर में अगर, यीशु मसीह में अगर है तो कोई दंड का आज्ञा नहीं है। God will transform me to His image. परमेश्वर मुझे अपने समान मुझे बनाएगा। He will glorify me into His presence one day. एक बार एक दिन मुझे परमेश्वर का सन्निधि में मुझे महिमा परमेश्वर महिमा However, रूप देगा। however miserable our lives may be today, कितना भी बुरी अवस्था हमारा जीवन अगर आज हो, God is calling us back to Him. परमेश्वर हमें वापस He बुला रहा है। says, reckon that you were dead to sin, you were died with Jesus Christ on the cross. पौलुस कहता है कि ये समझो कि तुम पाप के विषय में मरे गए हो, Come back to God. How can you live in sin? पर कैसे तुम ऐसा अवस्था में कैसा जी सकते हो? आओ वापस, ये परमेश्वर की ओर वापस आओ। How can you continue in sin? कि तुम पाप में कैसे और आगे बढ़ सकते हो? That is what God is calling us back today. वही बात, वही उसी और परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है। It is not for condemnation. तो हमें दोष लगाने के लिए नहीं। Christ has already delivered us from all condemnation. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सारे दंड, आज्ञा का दंड और दोष से हमें छुड़ाया है। But He desires that we be in His likeness, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के समान बने, so that we can continue in that love with Jesus Christ. ताकि हम यीशु मसीह का जो प्रेम में और आगे बढ़े, That no one can separate us from that love of Christ. ताकि कोई भी हमें परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम से हमें दूर हटा पाए, अलग कर पाए। What can I thank God today for? मैं आज परमेश्वर के लिए मैं किस बात के लिए, विषय के लिए धन्यवाद दूं? Thank God for the victory through Jesus Christ's death and resurrection. यीशु परमेश्वर को उस विजय के लिए धन्यवाद दो जो यीशु मसीह ने मृत्यु और मृत्यु में वो जो जय पाया है, मृत्यु और जीवन में जय पाया है। Thank God for uniting me with Christ, because of which we are free from every condemnation. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के साथ मुझे जोड़ा गया है और मुझे सारे आज्ञा का दंड से मुझे छुड़ाया। Thank God for delivering me from the law of sin and death. परमेश्वर ने मुझे पाप और मृत्यु का व्यवस्था से छुड़ाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank God for that Holy Spirit that indwells in me, that convicts me of sin, righteousness and judgment. That Holy Spirit will lead me home. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को इस पवित्र आत्मा के लिए जो मेरे अंदर वास करता है, जो मुझे पाप का समझ, जो मुझे धार्मिकता का समझ और दंड का समझ देता है और मुझे परमेश्वर के और मुझे ले चलाता है। And last few weeks we already were hearing about that Heavenly Father and His love and how He calls back us to forgiveness. और उस पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देता हूँ जो एक पिता समान, प्रेमी पिता समान हमें जो महान क्षमा दिया और हमें यीशु मसीह द्वारा वापस मेल मिलाप में के अनुभव में लाता है। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे।